Hey kids, good evening. कैसे हो आप लोग सब? So it is again once again show time, prime time, our time of 9 p.m. for my batch of 2021. And in today's class, I will do a topic which is called the principles of inheritance. Principles of inheritance is a very very important topic from board as well as MCQ point of view. We've already done this topic in a great amount of depth और आज हम इसका revisit करके complete topic को one shot में revise करेंगे. So open your copies, papers and pens. निकाल लीजिए अपनी NCERTs and let's totally revise this very 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 cool topic, right? Apart from this, my dear kids, today is a never before offer for you which is going to get end, which is really, this offer can end very very soon. This is the offer to become a part of the Vedantu long-term batches. I and certain other top teachers of the country take the long-term membership or the long-term classes in Vedantu. How can you become a part of these super amazing long-term classes? All that you have to do is become a part of a pro membership. So I have a very very exciting offer for you, like a very exciting offer which is only available for today and you must not let it go. The most important thing which you should know is that Vedantu is open to a long-term study plan which is called the pro membership. अब ये pro membership होता क्या है? In this you have access to all our super duper amazing master teachers. Some of them are not even there on YouTube because they are long-term super cool master teachers. तो आप उन लोगों से पढ़ सकते हो for a long-term course of both class 11th and class 12th. अगर आप 11th में हमारे साथ long term लेते हैं या 12th में long term लेते हैं, so your entire session is covered with us. Your entire session is covered with us and we teach you physics, chemistry and biology at a unimaginable price for the entire session, with class test, with class quizzes, with fastest finger first, with leaderboard, with Sunday test, with artificial enabled technology which helps you to analyze your Sunday test, with a batch that is yours, with an in-class doubt expert to take all your doubts, with a 24/7 recording available. मतलब मैं तो कह कर आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि कितना कुछ इस मेंबरशिप में आप सबको अवेलेबल है. Only and only for today, the membership of the pro course is available at a price of rupees 14,999 only. The code is VDPRO. VD stands for my name, Vani Dhinsa, Pro 21. So remember, the price is 14,999. The coupon code is VDPRO 21. All that you have to go is go to vdnt.in/ytneed21. Or go to vdnt.in/ytneed2021 the entire year. Use the code VDPRO21 and the price available is 14,999 rupees only and come to us for a complete 1 year coaching. 21 में जो बच्चे एग्जाम में लिख रहे हैं, अगर वो 12th का क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, the super amazing KVPY course which will be about to start will be complimentary. 11th का revision complimentary. So guys, don't let this opportunity go. So let's start. Gregor Johann Mendel is like the father of genetics. He's the first one. बहुत गरीब फैमिली में इनका जन्म हुआ था, right? And his parents sent him to a monastery because they didn't have too much of money. So he was sent to a monastery to study. That's how he actually started to study. But there he was like a naturalist, like something like Charles Darwin. But his beauty was that he applied mathematics into every concept of biology and therefore did something of a statistics, and that's why he's called the father of genetics, because उन्होंने जो भी experiments किए उनके इतने अच्छे statistical records रखे that till date if you read his work, if you read all the experiments that he did and you follow them step by step, you will have the same kind of results. That's exactly what Hugo de Vries, Carl Correns and Eric von Tassemark did in 1900. जब इन्होंने individually Hugo de Vries, कार्ल कॉर्डन्स और एरिक वॉन टसेमार्क ने मेंडल का काम रीडिस्कवर किया, तो जो मेंडल लिख के गया था इन्होंने एग्जैक्टली वही चीज की और इन्होंने देखा कि जो मेंडल ने बताया था वो सारी चीजें सच हो रही हैं. दैट्स व्हाई दे गेव हिम द उपाधि और द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट? ही वाज द फर्स्ट पर्सन. देखो, अभी तक जीन्स की इतनी नॉलेज नहीं थी, अभी तक ये नहीं पता था कि अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और फिर वो अगली जनरेशन में पास होता है. सूटॉन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नहीं दी थी. इन सबके बावजूद मेंडल ने कुछ ऐसी बातें बोल दी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, ये सारी चीजें, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स, जो ये प्रूव करती हैं दैट दिस जेंटलमैन वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम, राइट? सो आई एम श्योर आप लोग भी मेंडल की तरह ही मेहनत करोगे. आप लोग भी, यू विल नॉट बी काइंड ऑफ
bowed down by conditions. He did not come from a very rich family. He did not have great conditions. He did not have a lot of wealth. He did not even go to very great colleges because he did not have wealth. But he still did not give up on his dream. So that's one thing which we can really learn from Mendel. Also, बच्चों, he did not get success for a very simple reason. Watson and Crick ने अपने आर्टिकल्स नेचर नाम की मैगजीन में पब्लिश किए थे. नेचर वाज अ वेरी वेल सर्कुलेटेड, वेरी साइंटिफिक मैगजीन ऑफ दोज डेज. बट ये बिकॉज ही वाज नॉट सो रिच एंड ही वाज नॉट सो वेल कनेक्टेड, इन्होंने एक छोटी सी मैगजीन बाय द नेम ऑफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अभी तक मैं 2 या 3 एमसीक्यू बता चुकी हूं बाय द वे. Hugo de Vries, Carl Correns, Erich von Tessemark, 1900, rediscovery of Mendel's work, poor family, Austria, all of these are MCQ questions by the way, okay? तो इन्होंने राइट इट डाउन, एक बहुत छोटी सी मैगजीन कॉल्ड द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रूड में अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए. बिकॉज ऑफ विच उस मैगजीन की सर्कुलेशन बहुत कम थी एंड इट वाज अ नेचुरल हिस्ट्री मैगजीन, इट वाज नॉट रियली अ साइंटिफिक मैगजीन. दैट इज व्हाई ही नेवर रियली गॉट द क्रेडिट एंड फाइनली बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर ही passed away. चलिए, so Gregor Mendel through his work on pea plants, that's nothing but Pisum sativum, discovered the fundamental laws of inheritance. Deduced means पता लगाया that genes come in pairs and are inherited as distinct units. Capital T small t, capital R small r, capital Y small y, और units के फॉर्म में आगे जाती हैं. One from each parent, paternal, maternal. आइए, ये आपको 7 कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं जो ग्रेगर मेंडल ने इन डिटेल पढ़े. One of them is dominant, the other is recessive, right? So stem height एक कैरेक्टर है. ट्रेट क्या होगा? या tall या dwarf. Did you understand? Gene is one. The alternate pair of a gene, capital T and small t, are alternate pairs of gene. Capital T makes you tall, small t makes you dwarf. Alternate pairs of genes are called alleles. ये रहा Pisum sativum, वो रहे ग्रेगर मेंडल, स्टडी किया था. पाइसम सेटाइवम में 2n is equal to 14, सबको पता है. एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स: टॉल, ड्वार्फ, हाइट, फ्लावर कलर पर्पल व्हाइट. पर्पल इज डोमिनेंट, व्हाइट इज रिसेसिव. कैन यू ऑल सी दिस स्लाइड? यस. फ्लावर पोजिशन एक्सियल, ये टर्मिनल होता है और ये अगर यहां कहीं बीच में लग जाए एक्सियल. पॉड शेप फूली होगी, इन्फ्लेटेड, दबी होगी, कंस्ट्रिक्टेड. पॉड कलर ग्रीन, येलो. सीड शेप राउंड, wrinkled seed, yellow seed or green seed. So these are the 7 characters. Remember the dominant and recessive one, very very important from MCQ point of view. चलो तो आगे चलते. Give any 2 reasons for the selection of pea plants. सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, it is an annual plant. पूरा एक्सपेरिमेंट आपका 1 साल में हो सकता है. देखो, वियना के आसपास, ऑस्ट्रिया के आसपास मेंडल ने काम किया था. वियना और ऑस्ट्रिया में तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, कॉनिफरस पेड़ होते हैं, राइट? पाइन, चिनार, देवदार वगैरह टाइप के पेड़ होते हैं. कोई भी पेड़ ले सकता था वो, राइट? पर उन पेड़ों की लाइफ स्पैन होता है मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, 60-70 इयर्स के बाद वो मैच्योर होंगे. मेंडल बेचारा तो एक भी स्टडी नहीं कर पाता, एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता. ही वाज एबल टू वर्क फॉर क्लोज टू 10 इयर्स एंड एवरी ईयर ही डिड द एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट्स एन एनुअल प्लांट. पूरे एक लाइफ साइकिल 1 साल में खत्म हो जाती है. और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है. मैंने आपको 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखा दिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखा दिए. और देखो बेटा, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ और मेंडलिज्म में जब भी पढ़ाती हूँ, आई टीच यू विद अ लॉट ऑफ, मतलब मैं बहुत, आप कभी मेरी क्लास अगर लगाओगे मेंडलिज्म की, तो मैं नॉर्मल टीचर्स की तरह मेंडलिज्म नहीं पढ़ाती हूँ. आई टीच इट विद अ सेंस ऑफ रिलीजन, और यू नो जिसे कहते हैं, कैसे बताऊं मैं आपको, एक ईश्वर का स्वरूप दिखता है. वो ईश्वर कुछ भी हो सकता है. मेंडल के ऊपर किसी की कृपा नजर आती है. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेंडल के जस्ट बाद टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज ढूंढ लिया. मेंडल एक बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए, बहुत गरीब फैमिली में, इतनी गरीब फैमिली कि उनके पास खिलाने पिलाने पढ़ाने का पैसा नहीं था, इसलिए बेचारे को एक मॉनेस्ट्री में भेज दिया गया. मॉनेस्ट्री भी बहुत अमीर नहीं थी. जितना थोड़ा बहुत पैसा था, मेंडल अपने आप अपने छोटे से खेत में गार्डनिंग करता था, पाइसम सेटाइवम में उगाता था. बहुत ही मतलब मेहनती, शिद्दत, और यू नो अपनी मेहनत से कुछ करना जिंदगी में, उस कैटेगरी में मेंडल बिलोंग करते थे. तो बेटा, अगर मेंडल के जितने उसने 7 कैरेक्टर्स लिए ना, दिस इज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ लक कि मेंडल के 7 कैरेक्टर्स में लिंकेज आई ही नहीं, क्योंकि बच्चों तब उसको जीन्स के बारे में ही नहीं पता था. अगर लिंकेज हो जाती तो उसका लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उल्टा पड़ जाता. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता ही नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज.
यस या नो में जवाब दे दो। तो लिंकेज जो है वो टीएच मॉर्गन ने ढूंढी और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मेंडल ने ढूंढा, और क्योंकि उसने इतना कुछ ढूंढा इसीलिए पोस्ट्यूमस आफ्टर हिज डेथ उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर वो जीन्स पास होती, 7 कैरेक्टर्स देखे थे हमने, 7, अगर वो 7 कैरेक्टर्स की जीन पास होती तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता, लिंकेज होता, और मेंडल को कुछ भी समझ में नहीं आता और कभी भी शायद उसका वर्क इस लेवल तक नहीं पहुंचता कि सारे 11th और 12th के बच्चे दुनिया भर में आज भी मेंडल की स्टडी से ही जेनेटिक्स की शुरुआत करते हैं। तो ये हमें बताता है दैट गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। जो लोग मेहनत में, जो लोग ईमानदारी में बिलीव करते हैं, उनके पीछे हमेशा एक हायर पावर उनको सपोर्ट कर रही होती है। मेंडल की जिंदगी से ये बहुत इजीली दर्शाता है, और इस चीज को हम अपनी जिंदगी में, इन आवर ओन लाइफ्स, वी कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम मेंडल दैट गॉड रियली हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स, बिकॉज मेंडल डिड नॉट, in any of the 7 characters there was no linkage, therefore Mendel was able to discover independent assortment. But they are, they are independent things. Independent assortment भी नेचर में होती है और लिंकेज भी नेचर में होती है। करेक्ट? तो ये 2 कैरेक्टर्स है, मैंने आपको समझा दिए। चलिए, give any 2 reasons for the selection of pea plants. Annual है, easily cross pollinate कर सकता है, bisexual plant है, right everybody? Can easily be cross pollinated as well as self pollinated. Is that clear everybody? मेल फीमेल दोनों एक में है, तो मेरे को अगर क्रॉसिंग करनी है मुझे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्रॉसिंग करना। चलो, ओके, तो ये सेल्फ पॉलिनेट और क्रॉस पॉलिनेट भी हो सकता है। अब आते हैं मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस पे। जब मेंडल ने काम करना शुरू किया, अगर उसने एट वन टाइम ही टुक इनटू कंसिडरेशन ओनली वन कैरेक्टर, ही इज टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कैरेक्टर एट वन टाइम। अगर मैं फ्लावर कलर की बात कर रही हूं तो मैं हाइट की बात नहीं करूंगी, मैं पॉड शेप की बात नहीं करूंगी, मैं सीड शेप की बात नहीं करूंगी, मैं सीड कलर की बात नहीं करूंगी। अगर मैं हाइट ऑफ द प्लांट की बात कर रही हूं तो मैं टर्मिनल फ्लावर है या एक्सियल फ्लावर है, पर्पल फ्लावर है या व्हाइट फ्लावर है, एट वन टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑल माई एनर्जीज। यही तो मैं आपको बोलती हूं, इसीलिए मैं बोलती हूं कि मेंडल की जो जिंदगी है उससे हम बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। जो भी बात मैं कर रही हूं एट वन गिवन टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल क्रॉस। इज दैट क्लियर? सिंगल क्रॉस की बात मैं कर रही हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मैं सिंगल कैरेक्टर की बात कर रही हूं, अभी मैं सिर्फ हाइट की बात कर रही हूं। सो मेरे पास होमो, और देखो बेटा मेंडल ने प्योर पेरेंट्स लेके सारी पढ़ाई की। प्योर पेरेंट्स उसको कैसे मिले होंगे? उसने बहुत बार क्रॉस किया होगा, बहुत बार। देखो बच्चों, अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बहुत टीचर्स बहुत सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। That is why I want to give you a little bit of knowledge addition, जो आपको सिर्फ और सिर्फ वी बायोटॉनिक पर ही मिल सकता है। अगर ये होता पेरेंट, दिखने में तो टॉल ही है, रेड कलर का पेन ले लेते हैं, ज्यादा इजीली दिखाई देगा, दिखने में तो टॉल ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिनोटिपिकली टॉल है, पर अगर आप इसको अपने सेल्फिंग करोगे, सेल्फिंग, तो कभी ना कभी तो ड्वार्फ आ जाएगा। तो मेंडल ने मल्टीपल जनरेशन में सेल्फिंग की होगी, अगर ड्वार्फ आया तो मेंडल ने उसको रिजेक्ट कर दिया होगा। उसने सिर्फ ये वाला पेरेंट लिया जहां सेल्फिंग करने के बाद भी सारे टॉल आए। तो प्योर टॉल, ड्वार्फ तो प्योर होगा ही, बिकॉज ये तो ड्वार्फ हो नहीं सकता, ये तो ड्वार्फ हो नहीं सकता, ड्वार्फ तो सिर्फ दिस ओनली विल बी ड्वार्फ। इज दैट क्लियर एवरीबडी? सो ड्वार्फ हैज टू बी प्योर, एंड देन यू गेट अ हेटेरोजाइगस वन, and then when you self it you get tall, pure, tall, heterozygous, dwarf. ये तो सबको पता ही है, 1:2:1, 1, 2, 1 and 3 tall and just 1 dwarf. और इस 3 tall में 1, 2 are this and 1 is this. So this is phenotypic genotypic ratio, everybody knows it. This is Mendel's monohybrid cross. Which cross? Monohybrid cross में उसने बोला that the genes or the gametes are always pure. देखो, yes, मैं एक बार पीछे चली जाती हूँ तो फिर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पे आएंगे। उसने कहा गैमीट्स जो हैं वो हमेशा प्योर होते हैं। एक सेकेंड बच्चों, यस, गैमीट्स हमेशा प्योर। देखो कैपिटल टी से एक कैपिटल टी निकल रहा है। मैं थोड़ा सा इसका आई थिंक हल्का सा राइट, होमोजाइगस, देखो प्योर गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, 1:2:1 आपको पता चल गया, 3:1 आपको पता चल गया। आई थिंक अभी आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। आ जाओ आप डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। डन? हाँ,
ये रहा हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस. सो एम आई टेकिंग 2 जीन्स इनटू कंसिडरेशन? बताइए बच्चों, एम आई टेकिंग 2 जीन्स इनटू कंसिडरेशन? यस या नो में जवाब दो. देखो, राउंड एंड येलो, 2 कैरेक्टर्स ले लिए मैंने. राउंड, येलो, यस और नो. रिंकल्ड, ग्रीन. क्या क्या मैं 2 चीजें कंसिडरेशन में ले रही हूं? से यस मैम, नो मैम, यस, राइट. और जब मैं इनको क्रॉस कराऊंगी तो ये मेरा हेट्रोजाइगस बन गया, राउंड येलो, राइट. अब इसके गैमीट्स बनाइए. कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. देखो गैमीट्स बन जाएंगे आपके. तो आधे गैमीट्स 4 इधर लगाओ, 4 इधर लगाओ, प्यूरेट स्क्वायर बनाओ, आपके पास 16 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे. लेट अस डू दैट. सो व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय dihybrid cross? I am going to be talking about 2 characters, round and yellow, shape and color. In dihybrid, I am going to be talking about 2. So I am going to be talking about shape, round and wrinkled, and color, yellow and green. So आप सेम करिए. देखिए मैं यहां पर एक बार आपके लिए जल्दी से कर देती हूं so that you can understand it. ये था मेरा पेरेंटल जनरेशन P. तो इसको मैंने FY में कन्वर्ट कर दिया, F1. ये P है मेरे लिए, ये F1 है. और इसका करिए कैपिटल R कैपिटल Y. देखिए सेकंड होगा कैपिटल R स्मॉल y. देखिए ये देखो. थर्ड होगा स्मॉल r कैपिटल Y. देखिए. और चौथा होगा स्मॉल r स्मॉल y. देखिए, राइट. कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y. सिंपल. और इसको यहां और यहां लगा लिया. दिस इज व्हाट आई गेट. This is what I'm going to get. Is that clear? So the ratio is 9:3:3:1. Round yellow 9, round green 3, wrinkled yellow 3 and wrinkled green are 3. और dihybrid genotypic ratio का 1:2:2, 4:2:1 and 1:2:1. The ratios are very very important. यहां पे मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताती हूं. I'm going to write it here. टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस आपको पता है. तो अगर मेरे पास कोई भी बच्चा है, ये देखो, इसको ये आ गया F1 इंटू एनी पेरेंट. दिखाई दे रहा है बच्चों, यस और नो? F1 इंटू एनी पेरेंट इज बैक क्रॉस. F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट, टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस मतलब ये, टेस्ट क्रॉस मतलब ये, टेस्ट क्रॉस. इसकी रेशो होगी 4 बार 1 क्योंकि डाइहाइब्रिड है. इसकी रेशो होगी 2 बार 1. ये क्वेश्चन कम से कम 15 to 20 टाइम्स आ चुका है. नॉट मेनी टीचर्स विल बी एबल टू टेल यू दिस. F1 करो इसको क्रॉस. कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R इंटू रिसेसिव पेरेंट. ये F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट, कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल t स्मॉल t. अंडरस्टूड? वेरी वेरी सिंपल थिंग्स. रेशियोज आपको पता होनी चाहिए. बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस मैंने आपको बता दिया. 100% एक क्वेश्चन आएगा लॉज में, इसमें कोई डाउट नहीं है. कम ऑन क्लिक अ स्नैपशॉट. 100% 100 से भी ऊपर परसेंट. इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, जब सेम नहीं है, one member of the pair dominates the other ones. Obviously, yes, that is your law of Dobbs. Segregation का मतलब होता है separate. Segregation basically English word है, इसका मतलब ही होता है segregate, separate कर दिया आपने. कैसे किया? गैमीट्स प्योर होते हैं क्योंकि हमारे को गैमीट्स जो है वो 2 आएंगे, एक फादर से एक मदर से. मदर से जो आएगा उस गैमीट को मैं मैटरनल कहूंगी, फादर से जो आएगा उस गैमीट को मैं पैटर्नल कहूंगी. तो n आएगा प्लस n आएगा और दोनों मिलकर 2n आएंगे. अगर मदर ने 2n दे दिया और फादर ने n दिया तो हम 3n बन जाएंगे. अगर फादर ने 2n दिया, मदर ने 2n दिया तो हम 4n बन जाएंगे. सो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स होता है. दैट मींस गैमीट्स जो है वो सिंगल होते हैं और प्योर होते हैं. कैपिटल टी और स्मॉल टी कभी गैमीट नहीं बन सकता. देयर कैन नॉट बी अ गैमीट कॉल्ड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. देयर कैन नॉट बी. अ गैमीट हैज टू बी just capital T or small t. That's how gametes are made. Gametes have to be pure because a gamete is haploid.
Each of the parent gives a gamete and the kids take the gametes and become n plus n that's diploid. So a gamete always has to be pure. You get my point? Everybody, those of you who've got my point, can you give me a high five to know that you've got my point? And one like on my screen, please. Now, so if an organism is diploid, like all organisms are diploid, at the time of gamete formation, will the 2n become n and n? And the gamete receives only one of the two factors. So are you segregating, are you separating the 2n into n plus n so that the gametes can be pure? आप 2n को n और n में डिवाइड कर रहे हो so that the law of purity of gametes भी follow हो सके because gametes have to be haploid. Yes, perfect. That's the law of segregation. Independent assortment. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब आप लोग, आपका जो मन करेगा आप वही करोगे, आप किसी की सुनते नहीं हो। ये मैं आपको एक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाना चाहती हूं, राइट? अब बेटा ये देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज डिपेंडेंट ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं आपको, प्लीज ध्यान से सुनिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हो गए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब Y और R सेपरेट हो गए, जो अलग अलग चीजें हैं। प्लीज ध्यान से सुनिए, ये क्रोमोसोम है, हो सकता है कैपिटल Y की जीन इधर हो और इसके साथ यहां पर कैपिटल Y की जगह कैपिटल R की जगह स्मॉल r की जीन हो या कैपिटल R की जीन हो, कुछ भी हो सकता है ना। ऑल्सो डू यू अंडरस्टैंड, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पास पास नहीं लगी है जीन्स, डिस्टेंस ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा है दैट मीन्स इनके बीच की लिंकेज वीक है, इनके बीच की लिंकेज जो है वीक है। सो Y इधर जा सकता है और R इधर, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। Y इस क्रोमोसोम में चला गया और इधर से स्मॉल y आ गया, कैपिटल Y इधर चला गया। इज दैट क्लियर? सो क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब इफ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन इज हाई, लिंकेज इज वीक and crossing over occurs. So is capital Y linked to capital R? क्या कैपिटल Y और कैपिटल मतलब ये आपके पेरेंट्स है और ये आप जो बोलेंगे उल्टा करोगे, क्या दोनों आपस में लिंक्ड है? कैपिटल Y हो सकता है इधर चला जाए, कैपिटल R कहीं और चला जाए। दैट्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट होता है बटना, डिस्ट्रीब्यूट होना। सो असॉर्टमेंट इज डिस्ट्रीब्यूट होना एंड इंडिपेंडेंट मतलब अपने मन से डिस्ट्रीब्यूट होना, अपने आप से डिस्ट्रीब्यूट होना, किसी की ना सुनना, अपने आप अपने मन की करना इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बैक क्रॉस आपको पता है, F1 विद एनी पेरेंट, बैक पीछे चला गया, एनी पेरेंट। टेस्ट हम करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि वो प्योर है या इम्प्योर है, मतलब होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। मतलब ये मेरे पास दो हैं, इन दोनों को आप रिसेसिव पेरेंट से कर दो। यहां पे तो आपका आ जाएगा स्मॉल टी, पर यहां पे सारे टॉल आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल आर टॉल। सो टेस्ट क्रॉस इज टू टेस्ट द जाइगोसिटी। टेस्ट क्रॉस हम इसीलिए चेक करते हैं कि हमारे पास जो वेराइटी है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, क्योंकि दोनों टॉल तो दिखेंगे, कैपिटल टी भी टॉल दिखेगा, स्मॉल टी भी टॉल दिखेगा, कैपिटल टी भी स्मॉल दिखेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी टॉल दिखेगा, पर प्योर है या इम्प्योर है ये कैसा पता लगाएंगे? दोनों को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दो। कैपिटल टी स्मॉल टी ड्वार्फ बनेगा, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी जायंट हमेशा टॉल ही बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। चलो बताओ, मैंने अभी क्लास में बताया, जल्दी बताओ जल्दी। मोनोहाइब्रिड से कौन सा प्रिंसिपल मेंडल ने बताया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से और एक लाइक कर दीजिए। चलो कम ऑन गाइस, बच्चों, वानी मैम के लिए इतना नहीं करोगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है आपका? लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो बेटा, जेनेटिक्स इज अ वेरी वास्ट फील्ड एंड बिकॉज ये इतनी बड़ी फील्ड है, देयर आर मल्टीपल फिनोमिनन्स व्हिच हैपन। जो डोमिनेंस है वो एक प्योर रिलेशनशिप नहीं है। दैट मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स में, लाइक पी प्लांट में हाइट के लिए, कलर के लिए
डोमिनेंस है, दैट मीन्स कैपिटल T will always be dominant over small t, कैपिटल Y will always be dominant over small y, कैपिटल R will always be dominant over small r. बट जरूरी नहीं है ये चीज सब फॉलो करें. आपको बायो अच्छी लगती है, आपको वही बायोटॉनिक अच्छा लगता है, वानी मैम जो पढ़ाती है समझ में आता है, क्या पता कुछ लोगों को ना भी आता हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या पता कुछ लोगों को ना अच्छा लगता हो, राइट? तो सिमिलरली पर ऐसे बच्चे बहुत कम है, ढूंढना बड़ा मुश्किल है. यस, तो सिमिलरली हो सकता है कई जगहों पे इनकम्प्लीटली डोमिनेंट हो, दैट मीन्स डोमिनेंस पूरी नहीं है. अब ये रहा आपका एक रेड फ्लावर, राइट? तो रेड फ्लावर में क्या होता है, इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे मिराबिलिस जलापा, आपने सुना है? तो रेड फ्लावर में 2 R है, दिख रहा है आपको 2 R, राइट? बहुत इजी है, मैं आपको इतने इजी तरीके से समझा दूंगी कि आज के बाद आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इतने ज्यादा इजी तरीके से मैं आपको समझाती हूं. चलो, तो एक कैपिटल R जो है ना वो लिटिल पिगमेंट बनाता है, सेकेंड कैपिटल R लिटिल मोर पिगमेंट बनाता है, लिटिल मोर पिगमेंट. तो जब दोनों R मिलते हैं, R प्लस R, तो पिगमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया और कलर आ जाता है कंप्लीट पिगमेंट. दोनों मिलकर बनाते हैं, मिलकर, राइट? तो कलर हो गया आपका रेड. व्हाइट पे आइए, यहां पर R नहीं है, दैट मीन्स पिगमेंट नहीं है, इसीलिए ये पिगमेंट लेस. व्हाइट मतलब क्या हुआ? पिगमेंट लेस. तो मैंने आपको क्या बोला? 1 R लिटिल पिगमेंट बनाएगा, 1 R लिटिल पिगमेंट, कम पिगमेंट. दूसरा R और थोड़ा, you know, 1 चम्मच अगर चीनी डालेंगे in the cup of tea, if you add 1 spoon of sugar, it'll be a little sweet. You add another cup of, another spoon of sugar in the cup of tea, it'll be a little more sweet. So when you add the genes or add the spoons of sugar, the sweetness level will rise. So when you look at this, how many R's are there? Just 1 R. So pigment will be little. Simple. Is that clear? Now इसकी क्रॉस कर लो, कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल R स्मॉल r, करिए क्रॉस. तो आप क्या देखोगे? कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r. इज दैट क्लियर? तो ये आपका एक रेड, 2 पिंक और 1 व्हाइट. यहां नो R, therefore no pigment. Yes or no? 1 R, therefore little pigment. 2 R means double dose of pigment. How simple. But यहां पे beautiful thing ये phenotypic जो दिखाई दे रहा है, phenotype, एक रेड दिख रहा है, 2 पिंक 1 व्हाइट, और जीनोटाइपिक 1 capital R, 2 capital R, small r, and 1 small r, small r. This is incomplete. That means 1 capital R is not completely dominant. पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है, is not completely dominant. राइट? अब आ जाइए आप कोडोमिनेंस पे. कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? दोनों ही जीन्स आपस में डोमिनेंट है, एक दूसरी को और दूसरी एक को दबा नहीं सकती. तो ये आपकी एक जीन है आई, इसको मल्टीपल अलीलिज्म भी कहते हैं, मैं समझाती हूँ. आपकी एक जीन है आई, दिखाई दे रहा है? लेट मी सी. हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है. आपकी जीन है आई. इस जीन आई के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, राइट? इस जीन आई के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. एक फॉर्म होता है आई ए, एक फॉर्म होता है आई बी, और तीसरा फॉर्म होता है आई ओ. ये आपके 3 फॉर्म्स है, आई ए, आई बी और आई ओ, राइट? आई ए, आई बी एंड आई ओ, जीन आई के 3 फॉर्म्स है. नाउ ए जो है वो ओ पे डोमिनेंट है, बी जो है वो भी ओ पे डोमिनेंट है. बेचारा ओ तो बहुत ही भोला भाला और रिसेसिव है, सबकी बात मान लेता है. पर जब ए और बी आते हैं तो ना ए बी को दबा पाता है, ना बी ए को दबा पाता है. दैट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंट. आप देखो, हाइट की जीन जो टी है उसके 2 फॉर्म्स होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी. आर की जीन कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई की जीन कैपिटल वाई स्मॉल वाई. पर जीन आई जो ब्लड ग्रुप की जीन है, जिसको आइसोएग्लूटिनिन कहा जाता है, बिकॉज ब्लड अगर मैच ना हो, ए और बी ब्लड अगर आपने मिक्स कर दिया तो वो क्लम्पिंग कर देता है, इट गेट्स क्लम्प टुगेदर. तो जीन आई के कितने फॉर्म्स है? 3 फॉर्म्स, आई ए, आई बी, आई ओ. इसको कहते हैं मल्टीपल अलीलिज्म. मल्टीपल
अलीलिज्म, मेनी फॉर्म्स, ये कभी भी एक इंडिविजुअल में देखे नहीं जाते, ये सिर्फ पॉपुलेशन में देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो डिप्लॉयड हूं, आप भी डिप्लॉयड हो, तो हमारे अंदर सिर्फ दो होंगे। मैं बी पॉजिटिव हूं तो या तो मैं IB होंगी या IBIO। डन एवरीबडी? यस। तो ये आपका आई जीन के 3 फॉर्म्स हैं और ए ओ पे डोमिनेंट है, बी भी ओ पे डोमिनेंट है, तो ओ बेचारा रिसेसिव और ए और बी आपस में को डोमिनेंट। देखो ए IAIO, बी IBIO को डोमिनेंट एंड ये आपका रिसेसिव। आपको पता होना चाहिए ब्लड का जो एंटीजन है वो सरफेस ऑफ आरबीसी पे होता है। आई का जो एंटीजन है वो सरफेस ऑफ आरबीसी पे, तो एंटीबॉडी कहां होगी? सारी एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन्स प्लाज्मा पे होती हैं। और एंटीजन किसका बना होता है? ए का एंटीजन गैलेक्टोजामाइन का, ये किसी बुक में नहीं दिया है। बी का एंटीजन गैलेक्टोज का, ए बी के पास दोनों एंटीजन हैं, ए बी बोथ गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोसामीन। इज दैट क्लियर? ए ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है ए से, ओ से। देखो बेटा, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये सबको दे सकते हो आप। दैट इज इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, राइट right? और ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। इज दैट क्लियर? दोनों एंटीजन है ना, बोथ एंटीजन, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए ए बी हो जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये देखो, इट्स अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? मेनी पॉलीजीन्स, मेनी जीन्स। कितनी पेयर ऑफ जीन्स हैं? वी हैव 3 पेयर of genes. How many pairs of genes? 3 pairs of genes. What are the 3 pairs of genes? A, B, C. All 3 of them control one thing. What is the one thing that they control? Skin color. Only one character. That is why it is called polygenic. अब मैं आपको यहां पे प्लियोट्रोपी से लिंक करती हूं। प्लियोट्रोपी is one gene, many effects. Many gene, one effect. तो ये देखो यहां क्या है? Many genes, कितनी genes हैं? 3, one effect क्या है? Only skin color. Only skin color, that's your one effect. Whereas one gene, pleiotropy, many effects is your sickle cell anemia. समझ में आया कितना इजी तरीके से? I have told you this. A, B, C, the dominant ones make melanin. The recessive ones, उल्टा लिख देते हैं, इजी हो जाएगा याद रखना। So small a, small b, small c means no pigment. Because pigment बनाने वाली जीन कौन है? पिगमेंट बनाने वाली जीन है कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। ये देखो, फुल पिगमेंट। 64 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, 1 out of 64। देखो, ऑल स्मॉल, रिसेसिव, नो पिगमेंट, इसको कहते हैं एल्बिनो। और जैसे जैसे 1-1 कैन यू सी, एक एक बढ़ता जाएगा, पिगमेंट आता जाएगा। 2 बढ़ रहे हैं, पिगमेंट बढ़ता जाएगा। कैन यू सी दिस? 3, 4, 5 कैपिटल, 5 कैपिटल, पिगमेंट बढ़ गया। 4 कैपिटल, पिगमेंट बढ़ गया। 3 कैपिटल, देखो 2 capital, 1 capital, no cap. So the dominant gene is making the pigments, the recessive gene is not making the pigments. This is the maximum pigment, this is the minimum pigment. The Bichka people are called as mulattoes. This is the maximum pigment because this person has all 3 capital genes. That means this person must have done evolution close to the equator. It is a survival gene. Otherwise, the sun rays are so harsh mixed with UVA, UVB, UVC that it might cause basal cell carcinoma, which is cancer of the skin. This person has done evolution in the Arctic areas, the tundra, the polar areas. There are no rays of the sun there whatsoever. So this person does not require the protection of the melanin pigment. That's all. It's not at all cosmetic.
If you just want to learn one thing in today's class, learn to never embarrass anybody by the color of the skin. Never call anybody mota, moti. Never call anybody kala, kali. It hurts. It hurts as a kid. You must never do it. It's pure protective survival instinct, because this person did evolution close to the equator and this person did evolution away from the equator. It's a melanin pigment which absorbs the harmful layers of the skin. The darker your skin color, you are better protected. It is a survival instinct. That's all. The color of your skin cannot determine the love in your heart or the wisdom in your brain. Let no one ever judge you by the color of your skin, by the height, by the shape of your body, by the shape of your eyes. Never. Do not allow anybody to belittle you. That's the message of Vedanta. That's the message of We Biotonic. Yes, everybody. So this is I always do that in my regular classes. Ask my children how much of wisdom I give them in polygenic inheritance. Poly means many. मैंने आपको इसके साथ सिकल सेल अनीमिया, प्लियोट्रोपी भी समझा दिया. आ जाइए डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स के लॉस पे. मेंडल के लॉ से हमने क्या क्या देखा? डिड आई टीच यू अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस? डिड आई टीच यू अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस? जब डोमिनेंट पूरा नहीं है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला. डिड आई टीच यू ब्लड ग्रुप्स का को डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पिंक, मिराबिलिस, जलापा. 1 hour not enough. Did I teach you about polygenic inheritance? One gene, many effects is called as pleiotropy. Sickle cell anemia. Many genes, one effect. कितनी अमेजिंग क्लास हुई आज की, मजा आ गया. Yes or no? So these are all the parts. इन पे डायरेक्ट MCQs आएंगे. मैंने आपको सारी की सारी चीजें पढ़ा दी है. Yes. Phenylketonuria, sickle cell anemia, starch synthesis in pea plants also. Understood? What is pleiotropy? Amazing, amazing answer. Sickle cell anemia. One gene, many effects. तो वो एक जीन जब खराब होती है, वो स्फेरिडिन प्रोटीन नहीं बनाती है, जिसकी वजह से बाइकॉन्केव शेप नहीं होती है. बाइकॉन्केव शेप ना होने की वजह से सिकल शेप हो जाती है, जो लो ऑक्सीजन टेंशन में क्रिस्टलाइज करके सिकलिंग रिएक्शन करवा देता है, क्लॉट बनवा देता है. क्लॉट को बर्स्ट करो तो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और अनीमिया. सी, वन जीन, सो मेनी इफेक्ट्स, कैस्केड इफेक्ट फ्रॉम वन जीन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रोपी. Yes, single gene exhibits multiple phenotypic expressions is called as pleiotropy. Sickle cell anemia, phenylketonuria. Chromosomal theory of inheritance. दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सूटॉन एंड बोवरी. क्या नाम था बताइए? सूटॉन एंड बोवरी. क्या नाम था? सूटॉन एंड बोवरी. ये किन लोगों ने दी है थ्योरी? वॉल्टर सूटॉन एंड थियोडर बोवरी. ये कम से कम एमसीक्यू में 5000 टाइम्स आ चुका है. बड़ा ही मतलब कुछ भी नहीं है यार. जीन्स होती है, राइट? डीएनए और क्रोमैटिन. डीएनए होता है क्रोमैटिन फाइबर का, हिस्टोन प्रोटीन्स के आसपास लपटता है जीन्स. द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम. सो व्हेन द क्रोमोसोम्स ग्रो फ्रॉम वन पेरेंट टू द अदर, व्हेन द क्रोमोसोम्स डू क्रॉसिंग ओवर, जीन्स का एक्सचेंज होता है. ये हमें आज बड़ा सिंपल लग रहा है, पर जब माइक्रोस्कोप नहीं था और ये चीजें नहीं थी, थ्योरी बता पाना कि जीन्स है कहां, कौन उनका कैरियर है, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है, कैसे वो एक जनरेशन से दूसरी जाती है, ये पूरा इन्होंने बताया था. दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम ही तो आते हैं, ये पेयर करेंगे, सेपरेट होंगे, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, काइजमेटा बनेगा. तो ये सारे जो फैक्टर्स है ना, देखो मेंडल ने फैक्टर बोला था कि नहीं, बिकॉज उसको नहीं पता था. कार्ल कॉरेंस ने जीन वर्ड यूज किया था. कम ऑन गाइस, वन लाइक. तो ये सारी इंफॉर्मेशन कि यार क्रॉसिंग ओवर होगा, सेपरेट होंगे, यस, एक से दूसरे में जीन्स लेके जाएंगे, तो ये किसने बोला था? दैट दे आर द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी. Factors are on the genes. The genes cannot go from one parent to the other. Who is going to transmit them? The chromosomes. Homologous pair ये है. ये एक homologous pair है. Chromosome number 1 homologous pair. Paternal, maternal. ये दोनों क्या है आपकी? Sister chromatids. ये दोनों क्या है? Sister. ये आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉसिंग ओवर करेंगे और क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट करते हैं. ये सेग्रीगेशन ड्यूरिंग मियोसिस 1. इंडिपेंडेंट पेयर्स जो होते हैं वो अपने आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन करते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन हो सकती है.
जीन्स में म्यूटेशंस होती है, जीन्स क्रोमोसोम्स में होती हैं, तो क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन हो सकती है। ये होमोलोगस पेयर है। यस, क्रोमोसोम 1 के हमारे पास 2 पेयर है, एक मदर से एक फादर से। क्रोमोसोम 2 के 2 पेयर है, करते करते क्रोमोसोम 23 के 2 पेयर है। द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर यहाँ पे आई की जीन है तो यहाँ भी आई की जीन ही होगी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सुटोन एंड बोवेरी। यस, तो चलो बच्चों अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं, विच इज नथिंग बट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है, वेट आई एम जस्ट पिकिंग अप माय पेन, डन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, राइट। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, राइट। क्रॉस ओवर्स, रिकॉम्बिनेंस। आपने पेरेंटल टाइप्स पढ़े। पेरेंटल टाइप्स का मतलब होता है वो वाली जीन्स जो चेंज नहीं हो रही हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स में और पेरेंट्स में सेम रहती हैं। सो जो ऑफस्प्रिंग्स में और पेरेंट्स में सेम रहती है उनको पेरेंटल टाइप्स कहते हैं। अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए, वेरिएशंस होने के लिए क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है, व्हिच इज अ चेंज इन द जीन्स। लिंकेज, लिंकेज का जो मतलब है सो सिंपल। लिंकेज का मतलब है लिंक्ड, मतलब वो क्रॉसओवर नहीं हो रही है। तो बच्चों अगर लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगा तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो वीक होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये। और अगर लिंकेज वीक होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज इज डिपेंडेंट, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली कर लेते हैं, टू रिकॉम्बिनेशन, या आप इसको क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हो। लिंकेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जितना डिस्टेंस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ मतलब जितना वो कम पास 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 उतना लिंकेज स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। जितना दूर 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 जीन्स उतना लिंकेज वीक 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 वीक। मतलब अगर एक जीन ये है 1 और ये है 2, डिस्टेंस लेस है तो लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगा। इसको भी इनवर्सली कर देते हैं, यस। तो अगर डिस्टेंस कम, लेस, लिंकेज मोर, इनवर्सली हो गया। इज दैट क्लियर? लिंकेज मोर, डिस्टेंस मोर। एक जीन इधर है, मैं कलर चेंज करके बताती हूं आपको, राइट एवरीबडी। एक जीन इधर है और दूसरी जीन उसी क्रोमोसोम पे बनाते हैं इधर। सो यहां पर कैन यू सी डिस्टेंस is very ज्यादा, too much, therefore the linkage is going to be very, linkage ज्यादा नहीं होगी, weak. Is that clear everybody? तो यहां जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये कह रही थी कि अगर आपने लिंकेज बढ़ाना है आपको डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, so that is going to give us an inverse relationship here also. Linkage स्ट्रॉन्ग तभी होगा अगर जीन्स बहुत पास है। इफ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज वेरी लेस, आई रिपीट, इफ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज वेरी लेस देन द लिंकेज विल बी वेरी हाई। मैंने बहुत ऑसम क्लासेस बनाई हुई हैं। एट द एंड ऑफ इट आई एम गोना शो यू द फोटोग्राफ्स ऑफ दोस ऑन दिस। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, अगर डिस्टेंस ज्यादा है लिंकेज कम होगी, अगर लिंकेज ज्यादा है रिकॉम्बिनेशन कम होगा। Physical separation of 2 or more genes on chromosome. Linked genes do not show independent assortment. जितना linkage ज्यादा उतना recombination कम। जितना distance ज्यादा between 2 genes, linkage कम। जितना distance कम उतना linkage ज्यादा। Recombination is generation of non-parental जीन कॉम्बिनेशंस, राइट। नॉन पेरेंटल क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है। पेरेंटल क्या है, जैसी पेरेंट्स की जीन्स वैसी की वैसी बच्चों में जीन चली गई, एग्जैक्टली सेम जीन वेंट टू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, दैट इज पेरेंटल। पर यहां पे पेरेंटल नहीं है। रिकॉम्बिनेशन अगर हुआ है तो पेरेंट्स की जीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बिकॉज ऑफ विच कुछ चेंजेस हुए हैं और अगली जनरेशन में डिफरेंट जीन्स गई हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए बेटा, अगर ये एक जीन है 1 और ये दूसरी जीन है 2, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, फुल अटेंशन इन माय क्लास प्लीज। तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो 10 सेंटीमॉर्गन्स का, 10 सेंटीमॉर्गन, right? 1, 2, 3 सेंटीमॉर्गन is a unit for calculating the distance between genes. तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमॉर्गन, तो इनका परसेंटेज क्या है रिकॉम्बिनेशन करने का और क्रॉसओवर करने का? 10। अगर एक और जीन है 2,
के साथ में 3, इनके बीच में डिस्टेंस है सिर्फ 1 सेंटीमॉर्गन का, तो इनका परसेंटेज क्या है रिकॉम्बिनेशन करने का? 1%. सो जितना डिस्टेंस ज्यादा बिटवीन जीन्स उतना ज्यादा लिंकेज वीक. लेट मी राइट इट डाउन. इफ बिटवीन जीन्स द डिस्टेंस जो आपका है अगर वो ज्यादा है, इफ द डिस्टेंस इज मोर बट ऑब्वियसली लिंकेज आपकी कम होगी और रिकॉम्बिनेशन बढ़ता चला जाएगा. इफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज मोर, लिंकेज विल बी लेस, द रिकॉम्बिनेशन विल बी मोर. सो नाउ अगर यहां पे लास्ट में एक जीन बनाती हूं मैं और ब्लू कलर से बनाती हूं, सो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी. ए और सी में डिस्टेंस है 15 सेंटीमॉर्गन्स का, तो आपका परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? 15% चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन. द मोर द डिस्टेंस, the more the recombination, the less the linkage. I repeat, the more the distance, the more the recombination, the less the linkage. जैसे मैं बहुत क्लास में कॉमन एग्जांपल देती हूँ, मेरा सबसे ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप अपने नेबर से होगी जो 50 घर छोड़ के रहता होगा बहुत दूर. ऑब्वियसली मैं उसके पास if there's a tomato which gets over in my house or an onion or I have sore throat so I need some ginger to make a ginger tea, I'm going to ask my immediate neighbor, and but obviously not the person who stays really far. So the more the distance, the less the linkage. जेनेटिक मैप मैंने आपको बनाना सिखा दिया सेंटीमॉर्गन से. क्या क्या लोकेशन होती है जीन्स की क्रोमोसोम में हमें पता है with the help of this map. A linkage map is a genetic map based on recombination frequencies. Recombination frequency किस पे डिपेंडेंट होती है? सेंटीमॉर्गन. डिस्टेंस, अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस इज 1 सेंटीमॉर्गन, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 1%. सिर्फ 1% चांस है वो मूव करेंगी बिकॉज द डिस्टेंस इज लेस. पर दो जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमॉर्गन का, देयर इज अ 20% चांस दैट द जीन्स विल मूव. अब अगर मैं आपको बता दूं कि इसको बी मान लेते हैं, राइट, इसको सी मान लिया, इसको के मान लेते हैं, तो के और इसमें इतना डिस्टेंस है, ए और बी में इतना है. विल यू बी एबल टू मेक दैट मैप? आता है ना? तो फारदेस्ट डिस्टेंस प्लॉट कर लो. ए और सी के बीच में डिस्टेंस बता दिया आपको 20 सेंटीमॉर्गन. बोल दिया बी जो है वो ए और बी में 10, बी और सी में 10. तो ऑर्डर यही होगा ए बी सी. इससे थोड़ा ही मुश्किल एग्जाम में आएगा. अंडरस्टूड एवरीबडी? Right? Units are called map units and show the distance between genes. One map unit का 1% chance of recombination है. मैंने अभी आपको बताया awesome thing. और इसमें से जरूर MCQs आते हैं. इसकी मैंने NCERT मार्किंग भी आपको करवाई है. So chromosomal theory of inheritance की जो genes हैं वो chromosomes में होंगी. Chromosomes are mutable. The undergo mutation was given by Sutton and Boveri. Walter Sutton, Theodore Boveri in the year 1902. क्या ऑसम से भी ऊपर वाला चार्ट है. वेरी इजी, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी मजेदार. फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू. सर आर्किबाल्ड गैरॉड का नाम एनसीईआरटी में मेंशन है. ही वाज द वन हु टॉक्ड अबाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटोसोमल रिसेसिव है. जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूं 500% डायरेक्ट एमसीक्यूज आने वाली है. म्यूटेंट अलील ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 12 से एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाती है. इसीलिए मैंने नाम लिया था आर्किबाल्ड सी गैरॉड का. एंड थ्रू आर्किबाल्ड सी गैरॉड इन्होंने हमें सबसे पहले एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था. तो द एंजाइम व्हिच ब्रेक्स डाउन फिनाइल एलानिन लाइक फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीडोनेज, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसकी वजह से फिनाइल एलानिन ब्रेक डाउन नहीं होता है. फिनाइल एलानिन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होती है वो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है. सो फिनाइल एलानिन बिल्डअप हो जाता है एंड रिलेटेड कंपाउंड्स कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन. व्हेन यू कैनॉट फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन, टायरोसिन टू मेलानिन, ये पूरा एक मेटाबॉलिक सिस्टम चलता है. अगर आपके पास फिनाइल एलानिन को ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम नहीं होगी, सो बट ऑब्वियसली फिनाइल एलानिन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है.
सिस्टिक फाइब्रोसिस। बेटा देखो लास्ट के जो दिन होते हैं ना, लास्ट का टाइम आपको पता होना चाहिए मैंने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। कई लोग बहुत अपनी नॉलेज प्रूव करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा करवा देते हैं। फिनाइलएलनिन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम नहीं, फिनाइलएलनिन बॉडी में एक्यूमुलेट करता है, मेंटल रिटार्डेशन करता है, आर्किबाल्ड सी गेरॉड ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा 5th क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। सो व्हेन ओनली 85, 84 ऐसे डेज बचे होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखिए कितनी नॉलेज लेनी है, राइट। सो ये आपका आ गया ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। कौन सा आ गया? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। म्यूटेंट अलील ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम 7 encodes फॉल्टी क्लोराइड चैनल प्रोटीन्स। आपको पता है क्लोरीन के, सोडियम के, पोटेशियम के चैनल प्रोटीन्स होते हैं। इसकी वजह से लंग्स में बहुत इंफेक्शन हो जाती है, म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, पुअर फैट डाइजेशन, पुअर वेट गेन एंड सॉल्टी स्वेट बॉडी प्रोड्यूस करती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। 500% एमसीक्यू यहीं तक लिमिट हो जाता है। क्लास 12 के लेवल पे इस पे ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते हैं। हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स कोरिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर किसी को भी फैमिली में है तो वो होगा ही, ये लीथल जीन होती है। बाय द टाइम द पर्सन टर्न्स 35 or 40 years of age, the person dies 100%. Unfortunately, mutant allele of gene on chromosome number 4 बहुत कम चांस है कि आएगा, बहुत कम, राइट। मतलब जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड की वजह से प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो जाती है और ब्रेन में क्लम्प्स बन जाते हैं, राइट। ब्रेन में क्लम्प्स ऑफ प्रोटीन। समथिंग सिमिलर ऑल्सो हैपन्स इन अल्जाइमर्स डिजीज वेयर अ वेरी शार्प प्रोटीन इज मेड इन द ब्रेन एंड दिस शार्प प्रोटीन इन द ब्रेन रिमूव्स और कट्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच कैन नॉट रीजेनरेट। बट यहां पे शार्प प्रोटीन नहीं बनता। Alzheimer's disease में that sharp protein is called as beta amyloid plaques, but you do not have a sharp protein here. You have chunks of misfolded protein, progressive uncontrollable movements and personality changes beginning in middle age. मैंने क्या बोला? 35 to 40, by 45 or 50 the person dies because it is a brain disorder. Protanopia, deuteranopia, color blindness, very very important. X linked है, the genes are present on the X chromosome but recessive है, that means females can be carriers and males will be sufferer क्योंकि females के पास 2 X chromosome होते हैं, right? Red और green color या दोनों ही color दिखाई नहीं देते, that's why the person cannot read, write, see what is there in red color. Reduced ability to distinguish between red and green color. So this is called a carrier female, this is called a sufferer female and the male is always a sufferer अगर उसके पास एक X भी हो, क्योंकि मेल के पास एक ही X होता है। हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी से होता है। There are 13 factors which help you to do clotting. Royal family को था of Britain, but because these people intermarry or they marry only with royals, this disease spread in them. X-linked recessive inheritance, mutant allele mutation की वजह से होता है for gene encoding blood clotting factor 8. Uncontrolled bleeding because you know prothrombin to thrombin, thrombin converts fibrinogen to fibrin, fibrin is a meshwork जिसपे you know RBCs platelets आके अटकेंगे and blood clot होगा. That entire mechanism fails in them, so the blood does not, cannot clot. Why don't you click a snapshot? It's very important to underline whatever I have highlighted. Only those things have an ability to come in your examination. Let's come to Klinefelter, Turner's and Down syndrome. These are your chromosomal disorders. Klinefelter syndrome आपका XXY है, XXY. Turner's उल्टा XO है। यहां पे होंगे 45 क्रोमोसोम्स, यहां पे होंगे 47. 1 in every 500 to 1000 males, because XY है तो मेल तो होगा ही, but there is another X, तो मेल में थोड़े फीमेल जैसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं. Sexually underdeveloped males, rudimentary testis, that means testis has not developed because there are 2X plus 1Y. Prostrate gland also doesn't develop. बहुत लंबे पैर होते हैं, हाथ लंबे होते हैं. They may develop breast tissue, जिसको हम gynecomastia कहते हैं. That means it is a man having characters like a
female. Turner syndrome. 1 in every 2000 females. सिंगल एक्स है तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बट सिंगल एक्स है तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स may not be well developed. The characteristics are not well developed. Young women with only one X chromosome short होंगी, sexually underdeveloped because only one X are there. Intelligence will be normal, right? They are infertile because there is only one X. Ovaries develop नहीं करती हैं, right? So if they are given hormone supplement to produce testosterone, to produce estrogen and progesterone, growth and sexual development can occur. Intelligence is normal. Web neck, short stature, may not have well developed ovaries, are infertile, will never be able to have children. Let's come to Down syndrome. Trisomy of 21. They also have 47, but it is only on the 21st chromosome. Very common disorder. 1 in 700 people will have it. Short stature, round head. These people barely survive after 25 because they usually have problems of the cardiovascular system. Furrowed tongue, टंग के ऊपर ऐसे निशान होते हैं. मुंह, टंग बड़ी होती है तो माउथ इज जनरली ओपन. पाम, हाथ बहुत ब्रॉड होता है और यूजुअली एक सिंगल लाइन होती है. देखो, यस, मतलब 3 लाइनें जो सबकी होती हैं वो भी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल लाइन है. रिटार्डेड फिजिकल साइकोमोटर, मतलब ये अपना चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, इसमें कोऑर्डिनेशन कम होता है. मेंटल डेवलपमेंट, कॉन्जेनाइटल, ये मैंने पहले ही बोला था, हार्ट डिजीज. दे यूजुअली हैव अ होल इन द हार्ट एंड दैट्स व्हाई दे यूजुअली पास अवे व्हेन दे आर अबाउट 25 to 30 years of age. Klinefelters, XXY, Turner's, XO, Down syndrome, trisomy 21. Name the phenomenon that occur when homologous chromosomes do not separate during meiosis. They don't separate. Non-disjunction. Non-disjunction. क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे, दोनों एक्स एक जगह चले जाएंगे, वाई से मिल जाएंगे. 21st क्रोमोसोम का पार्ट सेपरेट नहीं हुआ, इसीलिए तो दोनों एक जगह गए. ये तो करना ही करना है. एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी. डन. चलो, बाय बच्चों, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.